Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11 accountancy, and in the last chapter we discussed the very important chapter, that is in chapter number 20, that is in capital and revenue item. In this chapter we discuss and understand the basic accounting, basic theoretical concept related to the preparation of the financial statement. In this video, firstly we discuss what is the meaning of financial statement, which type of the statement are included in the financial statement, as well as after completing this chapter we discuss financial statement with adjustment, and the last chapter of the 11th CBSE commerce syllabus, that is an incomplete records. So without getting in delay, let's start the concept of the financial statement. Firstly we discuss what is the meaning of financial statement. So basically financial statement refers to such a statement, it refers to such a statement which report the profitability, profitability and the financial position of the business, Okay, so what is financial statement? Financial statement refers to the such a statement which report the profitability, जो profitability report करता है और financial position बताता है business का, जो किसी भी organization के ये बताता है कि उसकी profitability capacity कितनी है, ये बताता है, साथ ही साथ वो business की financial position के बारे में भी explain करता है. बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन इट. फर्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट, सेकंड इज अ पोजीशन स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट, सेकंड इज अ पोजीशन स्टेटमेंट. So how many types of this statement included in the financial statement? Income statement and position statement. In the income statement we prepared trading account and profit and loss account. Okay, and for determining the position statement of the business firm prepared balance sheet. So firstly in this chapter we discuss what is the meaning of income statement, what is the meaning of position statement, how any organization prepared the trading account, profit and loss account and the balance sheet. ये इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. So first of all, what is the meaning of trading account? Because income statement जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी मेजर करता है. यानी विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ये पता चलता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी कितनी है, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपेबल है. वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से वी फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. हम ये पता करते हैं कि व्हाट आर दी प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस. यानी बेसिकली जो इनकम स्टेटमेंट है वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी को मेजर करता है, प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी. ठीक है, और पोजीशन स्टेटमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है. ठीक, अब हम थोड़ा सा एलिब्रेट करें इस चीज़ों को. तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट, विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट वी एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन sales and cost of goods sold. Okay,
सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट वी डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से हम क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन द सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट वी डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। Whereas with the help of the profit and loss account, we determine the net profit or net loss. Got it? यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डिटरमाइन करते हैं, और ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस के बीच में। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मेजर करते हैं, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, एज वेल एज हम टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस के बीच में भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। वही बैलेंस शीट की हेल्प से वी फाइंड आउट द कैपिटल, लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है। यानी विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट की हेल्प से बेसिकली हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल, लायबिलिटीज एंड एसेट्स फाइंड आउट करते हैं, और ये कब फाइंड आउट करते हैं? एट द बैलेंस शीट डेट। जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट को हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्टेटस है, मतलब वो उसकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है, ये सब डिटरमाइन करते हैं। प्लीज नोट डाउन समरी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड व्हाट इज द बैलेंस शीट। So let's start the first statement. First account is a trading account. The first one is a trading account. Okay. So what is a trading account? अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐसा अकाउंट जो सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट वी फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। सो हाउ वी प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट। फर्स्टली वी प्रिपेयर द फॉर्मेट, particulars amount and particulars amount, and write down the opening stock to opening stock in the debit side of the trading account, and to purchase, and thereafter we deducted the purchase return, बचता था इधर net purchase। In the credit side we write down the sales minus sales return, फिर उसके बाद दिस इज कॉल्ड नेट सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। अगर डेबिट साइड में पैसा कम आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट, और क्रेडिट में कम आता है तो ग्रॉस लॉस। यानी टोटली डिपेंड करता है फॉर्मेट पे कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि ग्रॉस लॉस बियर कर रहा है। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस में से ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही चीज बियर करेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ये है, सर क्या कोई तरीका है, क्या कोई फॉर्मूला भी होता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने का? यस, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है अगर आप देखें इस फॉर्मेट में, तो वो है डायरेक्ट एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकालने के लिए पहले हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी डेबिट करना पड़ता है अलॉन्ग विथ ओपनिंग स्टॉक परचेज। ओके, सो डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद अगर कोई पैसा बचता है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट।
सो द क्वेश्चन इज कौन कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस के कैटेगरी में रखे जाते हैं। लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट। कौन कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस में रखे जाते हैं। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंस को कैटेगराइज करते हैं, जैसे वेजेस, फ्रेट, कैरेज, कोल, गैस एंड वाटर। ठीक है, कोल, गैस एंड वाटर, कार्टेज, coal, gas and water, and dock charges, royalty, so these types of the expenses can be categorized under the direct expenses। इन सबको डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में रखा जाता है और साथ ही साथ इन सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट का मेन एम होता है कॉस्ट और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना और एक ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के लेकर आना कि कितना हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बिफोर द इनकरिंग एनी काइंड ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंस और या फिर नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस, जो गुड्स को बनाने से रिलेटेड नहीं है। गुड्स को बनाने के बाद भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो किए जाते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट का मेन एम होता है सिर्फ और सिर्फ उन सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना जिनका रिलेशन प्रोडक्शन प्रोसेस से होता है। सो दिस इज द फॉर्मेट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। द नेक्स्ट इज कि सर क्या कोई फॉर्मूला भी है जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यस, सो द वेरी सिंपल फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सबसे सिंपल सा नेट सेल्स। अगर आप फॉर्मेट में देखें तो नेट सेल्स ये जो पार्ट है उसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, बेसिकली इन सब पार्ट को आप ऐड कर दीजिए। ओपनिंग, परचेज, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें से माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। सो ऑटोमेटिक आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर आप क्लियर फोकस करें तो ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक, उसमें अगर आप परचेस प्लस करें नेट परचेज प्लस करें डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करें क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फॉर्मूला की हेल्प से हो चाहे अकाउंट की हेल्प से हो, यू कैन ईजिली प्रिपेयर दी ट्रेडिंग अकाउंट एंड फाइंड आउट दी ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी चीज़ ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डायरेक्ट एक्सपेंस को आइडेंटिफाई करना। नोट डाउन कर लीजिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So how we will prepare the profit and loss account? Basically, you know very well, profit and loss account is an account which helps to determine the net profit or net loss of the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सो बेसिकली हाउ वी विल प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? फर्स्टली वी ड्रॉ द फॉर्मेट एंड टेक द हेल्प ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ग्रॉस लॉस को डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और दोनों पे स्टार इसलिए लग रहा है क्योंकि दोनों में से किसी एक टर्म को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, दोनों चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यानी ट्रेडिंग अकाउंट या तो ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज करेगा या तो ग्रॉस लॉस डिस्क्लोज करेगा। उसके बाद ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में और जो लॉस आएगा उसे डेबिट साइड में पोस्ट किया जाएगा। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में और इनडायरेक्ट इनकम या अदर इनकम
अदर इनकम मतलब सेल्स के अलावा जितनी भी इनकम होती है उसे हम अदर इनकम के रूप में कंसिडर करते हैं या इनडायरेक्ट इनकम के रूप में कंसिडर करते हैं, उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ओके, as well as depreciation and amortization expense, okay, as well as the finance cost like interest on loan। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस आपको ब्रैकेट में दिख रहे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंसेस जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी से रिलेटेड है। डेप्रिशिएशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में या फिर उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। सेलिंग मतलब प्रोडक्ट को बेचना, जैसे एडवर्टाइज करा लिया, उसकी पैकेजिंग हो गई, उसकी लेबलिंग हो गई, उसके सेल्समैन की जो सैलरी है वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। डेप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट, तो ये सब के सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट होते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो। ये भी हम आपको बता दें। इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग सभी तरह की चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जैसे लॉस बाय फायर हो गया, चैरिटी हो गया। अगर आपने चैरिटी भी बिजनेस तो ये बिजनेस का एक्सपेंस थोड़ी ना है। लॉस बाय फायर हो गया, तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके क्या कहलाते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड करते हैं। उसी तरह से अदर इनकम में जैसे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया, आपका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया, साथ ही साथ अगर आपका डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, ओके, रेंट रिसीव्ड हो गया। सो जितने भी ये सब आइटम्स हैं, सब आइटम्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं, ओके। एंड फाइनली हम एट द एंड ऑफ दिस पॉइंट हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। और अगर डेबिट में कोई बैलेंस आता है तो उसे हम लोग नेट प्रॉफिट, और क्रेडिट में अगर कोई बैलेंस आता है तो उसे हम लोग नेट लॉस शो करते हैं। और यही नेट प्रॉफिट जो है वो बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल बनाते हैं तो कैपिटल में से ऐड किया जाता है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और जो नेट लॉस आता है उससे हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है, इसलिए नेट लॉस को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इससे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। सो दिस इज अ सिंपल एंड शॉर्ट explanation of the profit and loss account. Now we are moving to the formula by which we can easily understand how we will find out the net profit, net loss, operating profit and operating loss with the help of the formula. So let's we see it. कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सीख लिया था कि ग्रॉस प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं फॉर्मूला की हेल्प से। उसी तरह से हम ये देखते हैं कि कैसे हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो बेसिकली यू नो वेरी वेल, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। एंड नेट सेल्स इक्वल्स टू सेल्स माइनस sales return, okay. Third will be a cost of goods sold. Cost of goods sold is a opening stock plus net purchase plus direct expense minus closing stock. So this is the formula of cost of goods sold, ठीक है। एंड देयर आफ्टर, ये पहला मेन फॉर्मूला हो गया ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। दूसरा हो गया हाउ वी विल फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, एंड ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस करेंगे इनडायरेक्ट इनकम, ओके। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस की इनडायरेक्ट एक्टिविटी से, मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता है। सो दिस इज एन फॉर्मूला ऑफ नेट प्रॉफिट।
इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम। अभी जस्ट मैंने फॉर्मेट के हेल्प से आपको बताने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ तीसरा और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड हाउ इट विल प्रिपेयर्ड, कैलकुलेटेड विद दी, it will be calculated by two way. First is a gross profit. So gross profit में से जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो बिजनेस को चलाने से रिलेटेड है, उन्हें हम माइनस कर देते हैं, ओके। और नेट प्रॉफिट से कैसे निकलता है, बेसिकली दो फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का। पहला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम है तो ऐड कर देंगे, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट निकालने का, नेट प्रॉफिट से कैसे मिलता है, प्लस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए कितनी है, और माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो प्लीज नोट डाउन, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। So after calculating this topic, now let's we recapitulate the very important topic, that is an capital and revenue items, and you know very well it is a very important chapter for us, तो उसको रिवाइज भी कर लेते हैं at the end of today's session, okay। So next video में और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया जाएगा। So let's we solve the few practical question related to the capital and revenue items. So practical questions related to the capital and revenue expenditure. ठीक है। सो आई वॉन्ट टू से दैट इन दिस क्वेश्चन आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा, और विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट यू हैव टू फाइंड आउट कि ये एक्सपेंडिचर कैपिटल है कि रेवेन्यू है या डेफर्ड रेवेन्यू है, ठीक है। कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ठीक, इसके लिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो कह रहा है फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 10,000 वेर सोल्ड ऑफ ₹2,500 एंड न्यू फर्नीचर ऑफ द वैल्यू ऑफ 6,000 वेर रिक्वायर्ड, कार्टेज ऑन परचेज इज ₹50। सो बेसिकली आपने क्या किया, एक फर्नीचर था 10,000 का, उसे आपने बेच दिया 2,500 रुपये। तो जो लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल 7,500, जो लॉस हुआ है वो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटी से वो प्रॉफिट एंड लॉस है, और प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने उसके बाद फर्नीचर खरीदा 6,000 और कार्टेज किया 50। सो परचेज ऑफ फर्नीचर 6,000 + 50 इक्वल्स टू 6,050, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। बी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी इज प्रॉपर्टी परचेज फॉर 20 लाख and 1 lakh paid 50,000 paid for registration and legal fees. So ये आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल सा है, क्योंकि आप कोई एसेट खरीदते हैं और उस पर अगर आप कोई भी एडिशनल फीस पे करते हैं तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है 21,50,000। सी, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन बाय ए न्यू वन, आपने पुरानी मशीनरी के बदले एक नई मशीनरी रिप्लेस कर दी, दैट इज एन नंबर 3। तो आपको पता है कि नंबर 3 आइटम भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि आप मशीन को रिप्लेस करें
रिस्टोर करें या कुछ भी करें, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्राइटेरिया में आता है। क्योंकि आप इससे क्या करें, न्यू एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं तो बिक रहा है, उससे पैसा आ रहा है, वो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। फिर उस पैसे से आप क्या करें, न्यू मशीन लेकर आ रहे हैं, तो इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। डी पॉइंट, डैमेज पेड बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी टू इट्स पैसेंजर इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डैमेज पे किया ट्रांसपोर्ट कंपनी ने पैसेंजर को एक्सीडेंट होने के कारण, तो ये बेसिकली जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए, फॉर ट्रांसपोर्ट कंपनी का ये तो काम डेली है ना, कि अगर कोई प्रीमियम भर रहा है डे बाय डे तो पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। तो अगर आप किस लिए पैसा मिल रहा है, ताकि अगर कुछ एक्सीडेंट होगा तो आप उसकी लाइफ को क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो वो आपके लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रुपीज इज नॉट गिवन, सो प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। प्लीज नोट डाउन